Good afternoon, everyone. So, in the last session, we have discussed one of the algorithm that is first come first serve, right? In the last session, we have discussed first come first serve algorithm. There is any doubt in that algorithm anyone having? So that we will go further. Okay. So let me know that what is the concept, what is the idea behind first come first serve algorithm? How we implement first come first serve in CPU scheduling? What is the idea behind first come first serve algorithm? Yes, anyone? Yes, guys, anyone? What is the idea behind first come first serve algorithm? कैसे implement करते हैं? The process request first that gets CPU first. Process is served according to its arrival time. Okay, good. So what is the strategy? What is the logic behind first come first serve algorithm? That is whosoever will request first. मतलब सबसे पहले जो request करता है आपका algorithm, आपका प्रोसेस उसी को ही हम सबसे पहले सर्व करते हैं एज पर द नेम सेज whichever will come first will be served first, right? So what is the advantage and disadvantage of this algorithm so that we have moved further? इस वाले एल्गोरिदम के क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि हम फिर नेक्स्ट एल्गोरिदम पे मूव करें। और नेक्स्ट एल्गोरिदम पे हमने मूव क्यों किया उसका भी रीजन है, सम ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस और limitations of this algorithm we are having. So first of all, let us discuss about the advantage, right? So what is the advantage? First advantage we are having that is simple and fair. We know that first come first serve policy is very simple to implement. कि जिसका भी अराइवल टाइम मतलब जो भी प्रोसेस सबसे पहले आता है उसे हम सबसे पहले सर्व करते हैं, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल एंड फेयर। फेयर क्या है कि जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा, तो फेयर चांस है, राइट? एडवांटेज इज वेरी सिंपल एंड फेयर एल्गोरिथम, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको पता है कि इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सीखना भी बहुत इजी है। जस्ट लुक एट द अराइवल टाइम, जिसका भी अराइवल टाइम मिनिमम है उसको हम सबसे पहले शेड्यूल करते हैं, right? Then every process will get a chance to run, so starvation doesn't occur. Starvation क्या होता है? Basically starvation का meaning अगर मैं हिंदी translation करूँ, so we are having a meaning starvation of कि कोई भूख से मर रहा है, that is Hindi translation we are having. So here what it reflects that the every process will get a fair chance means जो भी process firstly arrive करता है उसे हम CPU दे देते हैं, और we know that it is a non-primitive approach. We know that which approach it is? Non-primitive means हम किसी भी process से बीच में CPU नहीं ले सकते. That is the non-primitive approach. किसी भी प्रोसेस से बीच में सीपीयू नहीं ले सकते. व्हाट इट मींस, अगर कोई भी टास्क आता है बीच में, हायर प्रायोरिटी टास्क हो या जो भी टास्क हो, मैं उसको सीपीयू नहीं दूंगी. जो प्रोसेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जो प्रोसेस ऑलरेडी जिसने रिक्वेस्ट किया है उसी को ही आपका सीपीयू मिलेगा, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि स्टारवेशन कभी नहीं होगा, कि जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही थी अगर हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तो कई बार मैं परमिशन की वजह से सीपीयू ले लेती हूँ, तो ऐसा होता है कि कई बार हाई प्रायोरिटी टास्क के आपके सीपीयू को यूज करते रहते हैं तो आपके जो बाकी प्रोसेसेस है उनकी टर्न ही नहीं आती है. सो एट दैट टाइम स्टारवेशन अकर्स इन योर सिस्टम. स्टारवेशन का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे सब? स्टारवेशन का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोसेस की टर्न ही नहीं आए, right? So starvation doesn't occur in first come first serve algorithm, right? So these are the three advantage of first come first serve. Now let us talk about the disadvantage. Basically डिसएडवांटेज क्या है जो कि हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पे मूव किए. नेक्स्ट एल्गोरिथम कौन सा हम डिस्कस करेंगे अभी? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, ठीक है? Some due to of these disadvantages we will move to the next algorithm that is shortage of first.
अब क्या डिसएडवांटेज है? नॉट एफिशिएंट, एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं है एज यू हैव सीन दिस। आपने क्या देखा, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। चलो मान लेते हैं मेरे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2, ठीक है। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम है 0, प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम है 1। दिस इज द अराइवल टाइम, राइट। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम है 100, प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम है 1, ठीक है। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? 0। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा? 0। कैसे और कितने टाइम के लिए? 100 सेकेंड्स के लिए। समझ रहे हो? कौन सा प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? यस। 0। और कितने सेकंड के लिए? 100 सेकंड के लिए। और प्रोसेस P2 का अराइवल टाइम क्या है? 1। जब तक मुझे पता है कि नॉन प्रिम्पशन अप्रोच है, तो नॉन प्रिम्पटिव है, तो सेकंड वाले प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा 1 सेकंड। एक उसको कितने सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए? सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए। तो P2 आएगा, फिर यहाँ पर P1 रन हुआ, तो कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए वो एग्जीक्यूट हुआ। अब ये देखिए आप जरा इस वाले अप्रोच में, अगर मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम से इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? कैन यू एनालाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? एनीवन? क्या प्रॉब्लम आ रही है इस अप्रोच में? किसी भी प्रोसेस को अगर मान लेते हैं P2 की बात करें, इसे सिर्फ 1 सेकंड सीपीयू चाहिए था। 1 सेकंड सीपीयू पे रन करने के लिए उसे वेट कितना करना पड़ा? 99 सेकंड्स, क्योंकि वो 1 सेकंड पे तो अराइव हो चुका है ना। तो किसी भी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा? मतलब 1 सेकंड एग्जीक्यूट होने के लिए उसे पूरे के पूरे फर्स्ट प्रोसेस का वेट करना पड़ा एग्जीक्यूशन खत्म होने के लिए। इसे हम बेसिकली कहते हैं कॉन्वो इफेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कॉन्वो इफेक्ट, राइट। तो ये कॉन्वो इफेक्ट क्या है कि आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बढ़ गया है। मतलब अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, अगर मैं इसी एग्जांपल को ऐसा लिखूं, P1 P2 अराइवल टाइम इज 1, अराइवल टाइम इज 0, और फिर मैं यहाँ पर लिखूं दैट इज 101। मतलब अराइवल टाइम सिर्फ चेंज किया है मैंने, ठीक है। मैं सिर्फ अराइवल टाइम चेंज कर रही हूँ। तो अभी के लिए देखो, अराइवल टाइम और ये इसका बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर मैं चार्ट बना रही हूँ, तो 0 पे कौन सा प्रोसेस आया? P2। तो पहले P2 एग्जीक्यूट होगा कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। फिर P1 एग्जीक्यूट होगा कितने सेकंड के लिए? 100 सेकंड के लिए। तो अभी देखो P1 को कितना वेट करना पड़ा? P1 को भी वेट नहीं करना पड़ा। तो एवरेज वेटिंग टाइम इस केस में कम है, इस केस में कम है, इस केस में। और इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट। कि आपका जो प्रोसेस है, आपके जो प्रोसेस को क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, राइट। 1 ही सेकेंड एग्जीक्यूशन के लिए, अगर किसी को 1 सेकेंड के लिए सीपीयू चाहिए और मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्लाई किया है, ठीक है। अब 1 सेकेंड के लिए भी उसको पहले वाला प्रोसेस कितना भी लंबा हो, कॉन्वे इफेक्ट क्या है कि आपका प्रोसेस कितने भी सेकंड के लिए कितने भी सेकंड के लिए सीपीयू एग्जीक्यूट करे, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर सिर्फ अराइवल टाइम पे फोकस रहते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अराइवल टाइम चेक करते हैं। हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बर्स्ट टाइम को कंसीडर ही नहीं करते। दैट इज नोन एज कॉन्वो इफेक्ट हियर। बट आई एम सेइंग कॉन्वो इफेक्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है आपको कि व्हाट इज कॉन्वो इफेक्ट। सो कॉन्वो इफेक्ट इज यू आर नॉट कंसीडरिंग बर्स्ट टाइम ऑफ द processes, you are just considering the arrival time in the first come first serve algorithm. That is known as convo effect. इससे क्या होता है? सारे प्रोसेसेस को क्या करना पड़ता है आपका? ऑलरेडी मैंने बताया कि एफिशिएंट तो नहीं है ये अप्रोच, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, एवरेज वेटिंग टाइम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम इस वाले एल्गोरिथम का बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए दूसरे एल्गोरिथम पे मूव करते हैं, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, right? So moving towards the shortest job first, okay, there's one another disadvantage, that is CPU utilization may be less efficient.
ऐसा भी हो सकता है इस केस में कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं वो रनिंग स्टेट में है, और कुछ हमारे पास इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस भी होते हैं, कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर 100 सेकेंड के लिए प्रोसेस को यूज करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए यूज कर रहा है और फिर वेट कर रहा है, पहले जो आएगा पहले हम उसके लिए होल्ड करके रखते हैं, राइट। सो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कहीं ना कहीं इसमें एफिशिएंटली हम नहीं कर पाते हैं। तो मूविंग फर्दर फॉर द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। अब देखो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या मतलब है, एज द नेम सेज, कि जिसका जो जॉब का टाइम है, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिक फंडा क्या है इस वाले एल्गोरिथम का, जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा उसे हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। shortest job will say the process which requires shortest time to complete its execution will served first। मतलब burst time हुआ ना, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए जिसको सबसे कम टाइम चाहिए उसे हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या कंसीडर कर रहे थे, कि जो सबसे पहले आता है, मतलब अराइवल टाइम जिसका मिनिमम है, दैट इज फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, कि जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। समझ रहे हो? तो अब ये कैसे हम इसको यूज करते हैं ये देखते हैं। ये नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव की बात हो रही है, प्रिमिशन की बात भी करेंगे इसी एल्गोरिथम में हम। नॉन प्रिमिशन अप्रोच है कि किसी भी प्रोसेस को आप अगर सेलेक्ट कर लेते हो ना एक बार, तो उसे पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जब तक कोई और प्रोसेस नहीं आ जाए। मतलब अगर मैंने कोई एक प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया तो पहले मैं उस पूरे को एग्जीक्यूट करूंगी, फिर मैं दूसरा प्रोसेस शेड्यूल कर सकती हूँ, राइट। सो बाय लुकिंग इज द एग्जांपल, तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कैसे करना है वो देखते हैं। प्रोसेसेस दिए हुए हैं, अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये सब तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अप्रोच क्या है, जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, करेक्ट है। दिस इज द अप्रोच वी आर हैविंग। अब हमें पहले चार्ट बनाना होता है, तो चार्ट कहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से, वी नो दैट। अब आप बताइए सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यस गाइस, विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, P2। P2, आप लोगों ने क्या देखा, P2 का बर्स्ट टाइम कम है, मतलब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। अब ये देखिए पहले, चलो अभी तक आपने सिर्फ बर्स्ट टाइम देखा, चलिए मान लेते हैं। इसका मतलब P2 आया कब सिस्टम में, 3 सेकेंड पे। क्या 3 सेकेंड तक सिस्टम फ्री रहेगा, क्या सिस्टम 3 सेकेंड तक हम फ्री रखेंगे, नहीं। क्या देखो, जब तक कोई, फॉर एग्जाम्पल टिकट काउंटर की बात करते हैं, 10 लोग टिकट लेने के लिए आए सेम टाइम पे, ठीक है, और जिसको एक ही टिकट चाहिए मैं उसको पहले दे रही हूँ, ये अप्रोच है, ठीक है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आ कौन रहा है। अगर एक टाइम पे एक ही पर्सन है और उसको 10 टिकट चाहिए तो मैं उसको ही दूंगी पहले, या फिर मैं वेट करूंगी कि नहीं, पहले जिसको सबसे कम टिकट चाहिए मैं उसके लिए वेट करती हूँ, फिर मैं सर्व करूंगी। नो, इसमें देखिए आप आपको क्या ध्यान देना है, क्या 0 सेकेंड पे कोई प्रोसेस था सिस्टम पे, यस, विच वन, P0। जीरो पे देखिए, 0 सेकेंड पे एक सिस्टम में ऑलरेडी प्रोसेस आ चुका है, तब तक ये तीनों प्रोसेस नहीं है, ठीक है, तब तक ये तीनों प्रोसेस सिस्टम में नहीं है। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना भी हो मेरे पास कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है, तो इस टाइम पे मुझे P0 को ही सिस्टम देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, P0 को शेड्यूल किया। आर यू गेटिंग? P0 को शेड्यूल किया कितने सेकंड के लिए, और पता है कौन सी अप्रोच है, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव अप्रोच का क्या मतलब है, कि एक बार ही प्रोसेस शेड्यूल करने के बाद उसे पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मैं बीच में से प्रिम्प नहीं कर सकती। तो मैंने P0 को पूरे 10 सेकेंड के लिए क्या किया, एग्जीक्यूट किया। गॉट इट? देन नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग। अब देखो P0 को मैंने 10 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखो 10 सेकेंड के लिए सिस्टम में, 10 सेकेंड्स के बाद क्या ये तीनों प्रोसेस सिस्टम में आ चुके हैं,
मैंने 10 सेकंड तक ये प्रोसेसिंग की P0 की, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर एक प्रोसेस P1 अराउंड 1 सेकंड पे, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3 दैट इज 3 और 5 ये सब सिस्टम में आ चुके हैं, यस और नो? प्रोसेस P1 P2 और P3 करेक्ट। अब मेरे पास कंपेयर करने के लिए 3 प्रोसेसेस हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं डिसाइड, नाउ दिस इज द डिसीजन टाइम, गॉट इट। जब मेरे पास एक ही प्रोसेस था सिस्टम में तब तो मैं उसे कंपेयर ही नहीं कर सकती ना, पर अभी मेरे पास सेम टाइम पे मतलब 10 सेकंड के बाद अराइवल टाइम 1 सेकंड, 3 सेकंड एंड 5 सेकंड मींस ये तीनों के तीनों प्रोसेस सिस्टम में ही हैं, दे आर रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, राइट। एट दैट टाइम आई कैन कंपेयर। अब देखो, अब बर्स्ट टाइम किसका कम है? नाउ एट दैट टाइम P2 will be executed first because P2 is having smallest burst time, that is 2 12। उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए आफ्टर P2? yes, after P2 which will be executed first? P3, करेक्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट किसका है? P3 और P1 में से P3 का, तो P3 आएगा पहले 16, फिर P1 आएगा फॉर 6 सेकेंड्स 22। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ये चीज क्लियर हुई सबको? देखिए, आपको शॉर्टेस्ट टाइम भले ही देखना है, इट इज ट्रू हियर, बट अगर एक टाइम पे आपके पास सिस्टम में एक ही प्रोसेस है तब आप टाइम कंपेयर नहीं कर सकते ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो दिस इज द चार्ट। देखो, चार्ट बना लिया तो उसके बाद का तो काम बताइए आपको, अब क्या करना है, हर किसी प्रोसेस का एग्जिट टाइम फाइंड आउट करना है। तो P0 का एग्जिट टाइम बताओ, दैट इज द एग्जिट टाइम। P0 का 10, फिर P1 का 22, P2 का 12, P3 का 16, करेक्ट। चलो, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है हमारे पास? दैट इज एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलिए, तो P1 P0 प्रोसेस के लिए क्या है? एग्जिट टाइम 10, अराइवल टाइम 0, तो टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा? 10 आएगा। सेम P1 के लिए एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम दैट इज 21, इसके लिए भी एग्जिट टाइम 12, अराइवल टाइम 3 दैट इज 9, इसके लिए भी 11। दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। सेम वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हो, बर्स्ट टाइम कितना है? 10 है, तो फर्स्ट वाले प्रोसेस को हम बाय लुकिंग एट दिस चार्ट भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ 0 सेकेंड ही वेट करना पड़ रहा है P0 को, ठीक है। फिर उसके बाद P2 के लिए देखते हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना है? 21, बर्स्ट टाइम कितना? 6, कितना हुआ? 15, 15 सेकेंड उसने वेट किया। सेम इसके लिए फाइंड आउट करो, 7 देन 7, you will find the average here and also average here. This is how you can say, फॉर्मूला सेम है, बस अब चार्ट चेंज हो जाएगा आपका। Is it clear how to solve for shortest job first? Any doubt till now? Yes, average time is 12.75, okay. Correct. And average waiting time is? Correct. So आप अब देखो, आप एनालाइज भी कर सकते हो, आप इसी इसी वाले सिस्टम के लिए, इन्हीं प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सॉल्व करके देखो और फिर एवरेज फाइंड आउट करके देखो, यू विल फाइंड द डिफरेंस। देयर वुड बी डिफरेंस इन एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम ज्यादा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, राइट। नाउ यू विल डू, एडवांटेज डिसएडवांटेज बाद में डिस्कस करते हैं, अब ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करोगे। प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, प्रोसेस P1, P2, P3, P4, arrival time 0, 1, 2, 3, right? 2, 3,
3 4 1। करिए सॉल्व फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यस हिमांग। हिमांग, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? करिए करिए सॉल्व और जल्दी से बताइए फिर मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताइए पहले मुझे एग्जिट टाइम सबका सीक्वेंस बताओ, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। कर रहे हो तुम लोग? P2 P4 P1 P3 P4 P2 P1 P3। करिए। फर्स्ट वाले के लिए कुछ लोग P2 पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग P4 पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए? बेसिकली अराइव कौन सा कर रहा है सबसे पहले? P2, तो P2 एग्जीक्यूट होना चाहिए ना पहले। फर्स्ट वाले के लिए क्या किया आप लोगों ने? जो भी लोग फर्स्ट वाले के लिए P2 पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो देखिए, वो यहाँ 0 से शुरू करें। देखो 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस है सिस्टम में? P2। अराइवल टाइम 0 किसका है? P2 का। P4 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, लेकिन अराइवल टाइम तो देखो 3 है। सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट? कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। देखो 2 सेकंड के लिए यही दो प्रोसेस आए हैं सिस्टम में, 1 और 3, P1 और P3। तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा P1 और P3 में से? P1, क्योंकि बर्स्ट टाइम किसका कम है? P1 का। तो P1 कितने सेकंड के लिए? 3 के लिए 5। अब तक सिस्टम में अब हमारे पास P1 हो गया है, ठीक है, P2 हो गया है, अब दो ही बचते हैं, P3 और P4। दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P4 का।
बेटा तुम लोग तो सब गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करना है? हाँ, सॉरी, 1 तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। मुझे ये बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है करना क्या है? चलिए ये मैं आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ। हाँ, यस। चलिए देखो, सबसे पहले देखो प्रोसेस का अराइवल टाइम। अराइवल टाइम मतलब अगर अराइवल टाइम सेम है तब हम बर्स्ट टाइम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब सिस्टम में जो काम हमें गिवन होगा उसी प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। अगर सिस्टम में प्रोसेस है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे करूंगी? तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं? जीरो से। तो मैंने जीरो से शुरू किया। अब जीरो टाइम पे कोई प्रोसेस है सिस्टम पे? एट टाइम जीरो एनी प्रोसेस इज इन द सिस्टम, P2 है। अराइवल टाइम क्या है? जीरो। क्या कोई और प्रोसेस है तब तक? तो बाय डिफॉल्ट P2 ही एग्जीक्यूट होगा। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड्स के लिए। डन यहां तक। अब देखो, 0 से 2 सेकंड के लिए सिस्टम एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब इस टाइम तक P1 प्रोसेस और P3 प्रोसेस सिस्टम में एंटर किए हैं। यू आर हैविंग P1 एंड P3 प्रोसेस इनटू द रेडी क्यू। P4 तो अभी भी नहीं है क्योंकि P4 कित कब अराइव हो रहा है? 3 सेकंड्स पे। लेकिन आपका सिस्टम का साइकिल कहाँ तक अभी तक रन हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है? 2 सेकंड्स तक, राइट? तो P1 और P3 में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा पहले? अब बस टाइम कंपेयर करो, 3 and 4, which will be executed? P1. आर यू गेटिंग? अब P1 एग्जीक्यूट हुआ कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। तो 2 + 3 5। अब 5 सेकंड्स तक सारे के सारे प्रोसेस सिस्टम में आ चुके हैं, लेकिन P1 और P2 एग्जीक्यूट हो गया। बचे कौन से? P3 और P4। P4 और P3 में कंपेयर करो, बर्स्ट टाइम किसका कम है? P4 का। तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? P4। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए 6। देन P3 फॉर 10। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। समझ में आ रहा है क्या किया है एवरीवन? चलिए फिर अब सेकंड वाला करिए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले सबके चार्ट्स बना लो, फिर उसके बाद एवरेज टाइम्स फाइंड आउट करना। पहले चार्ट बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पहले चार्ट बनाओ और बताओ मुझे सीक्वेंस। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। DABC। DABC, गुड, वेरी गुड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या, वेरी इजी है। अराइवल टाइम सबका सेम है, मतलब अब सिर्फ हमें क्या चेक करना है? बर्स्ट टाइम जिसका कम हो। सिंपल, वेरी इजी। तो DABC इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। डन। चलो अब थर्ड बताओ। पहले अभी एवरेज टाइम बाद में फाइंड आउट करते हैं, पहले चार्ट्स की सीक्वेंस बताओ मुझे। थर्ड क्वेश्चन की सीक्वेंस बताओ। फॉर द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन? देखो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम्स में आते हैं, बस क्लियर रखना है अपना कॉन्सेप्ट और बस एग्जीक्यूट कर देना है उसके अकॉर्डिंगली। P2, P3, P1 एंड P4। पहले तो P2 ही एग्जीक्यूट होगा, सही है। फिर P3 होगा, वो भी सही है। फिर P1 होगा, फिर P4 होगा, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देन फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। सीक्वेंस बताओ पहले मुझे।
बताइए बताइए फोर्थ क्वेश्चन के लिए। BCEDA, बी और सी पे पहले कंपेयर करोगे तो बी एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट है। तब तक ए भी आ चुका है, ठीक है, फिर ए एग्जीक्यूट होगा, वो भी करेक्ट है। तो 2 + 3 5 सेकेंड तक सब आ चुके हैं। तो बी हो गया, ए हो गया, फिर ई होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, ठीक है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर एक बार चार्ट बना देती हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, आप लोग एक बार मैच कर लो। इसका बताओ मुझे साथ साथ। सबसे पहले देखो अराइवल टाइम सबका सेम है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या था, अराइवल टाइम सेम हो तो हम एक ही कोई भी किसी को भी पहले एग्जीक्यूट कर सकता है, बट यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, बर्स्ट टाइम जिसका शॉर्टेस्ट होगा। सबसे पहले डी आएगा 0 से 1 तक, फिर ए आएगा कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए 3, फिर बी आएगा 3 + 3 6, फिर सी आएगा 10। डन। चलो इसके लिए चार्ट बनाते हैं। 0, देखो 0 पे कौन सा आया, अभी मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, P2 ही है। कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर देखो 1 सेकंड तक कोई भी सिस्टम में आया है प्रोसेस, 0 से 1 सेकंड के लिए कोई भी सिस्टम में प्रोसेस आया है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, यस और नो। नो मैम। नहीं तो क्या होगा, 2 सेकंड पे P3 आ रहा है ना, 1 सेकंड के लिए आपका सिस्टम क्या जाएगा, आइडल, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई। 2 सेकंड पे P3 आ रहा है, तो इस पे भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये दोनों तो बाद में आ रहे हैं। तो 2 सेकंड पे P3 आया तो P3 को एग्जीक्यूट कर दिया, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। अब देखो 4 तक ये दोनों आ चुके हैं, अब इन दोनों में से जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसे पहले एग्जीक्यूट किया, P1 को, दैट इज 7, और फिर P4 को, दैट इज 4 सेकंड के लिए 11। डन। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे देखो दो प्रोसेस आ रहे हैं, बी और सी। अब किसको एग्जीक्यूट करूंगी पहले, बी को। क्यों, क्योंकि बी का जो है वो टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड के लिए के बाद ये भी, ये तो हो गया खत्म, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। तो इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करूंगी, ए को। इसका क्या है, टाइम कम है, ए को क्या, 5 सेकेंड। अब देखो 5 तक ये भी आ चुका है, अब ये खत्म, ये भी आ चुका है सिस्टम में, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो इन तीनों में से देखो किसको कंपेयर करो, अब ई पहले 6, फिर डी कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, फिर सी कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को, कोई डाउट, चार्ट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, किसी भी प्रॉब्लम में चारों में से कोई भी क्वेरी, कोई डाउट। क्लियर है ये चारों चार्ट सबको। चलिए अब एक एक करके हर एक सिस्टम, हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड आउट करो, और मुझे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम बताओ चारों क्वेश्चंस के। What is the average turnaround time and average waiting time for each of the problem given here? करो, फर्स्ट का बताओ सबसे पहले। Yes, for first question. Yes, first question, average waiting time and average turnaround time. फाइंड आउट करो, बताओ जल्दी से आंसर्स।
अरे बताओ, कितनी देर लगती है? Yes, guys, for the first question. बोलिए। इतनी देर? Yes, Aditya. What is the average waiting time and turnaround time for first question? आदित्य, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी देर लगाओगे क्या? Turnaround time is 5.75. For first question, you are talking about Rishabh? No, it is not. Rishabh, correct your answer. It is not correct. Aditya, I'm asking from you as well. ध्रुव and Om, it is 4.25. ध्रुव का आंसर सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Elvish, Aditya, this is the last time I'm asking for you, otherwise I'll remove you from the meeting right now. Yes, correct. Correct, Kevin Kayur. Correct. Yes, Elvish. Yes, correct, correct. सेकंड क्वेश्चन के लिए भी फाइंड करो। करेक्ट है। एल्विश, पेनी, गौरव, सेकंड क्वेश्चंस के लिए फाइंड आउट करके बताओ तुम तीनों जल्दी से। पेनी एंड गौरव, आई एम वेटिंग, डू इट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सबके लिए। यस पेनी, डू इट फॉर द सेकंड क्वेश्चन। जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड आउट। यस, जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड के लिए फाइंड करो जल्दी से। एंड राइट योर आंसर्स हियर। Very good, very good. Whosoever is replying. Average turnaround time 5, waiting time is 2.5. Yes, correct. Correct. Very good. Solve it for third and fourth as well. करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
थर्ड के लिए एवरेज वेटिंग टाइम, सॉरी 1, एंड टर्न अराउंड टाइम इज 3.5, करेक्ट। वेरी गुड। चलिए फोर्थ के लिए भी फाइंड आउट कर लो फटाफट से। फोर्थ के लिए यस 4.6 and waiting time is 2.2, correct। Done। चलिए करिए, करो ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। चलाओ दिमाग। करिए, अभी दोनों क्वेश्चन कर लिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का, और आप कोई भी न्यूमेरिकल अब सॉल्व कर सकते हो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट अप्रोच से। पहले क्वेश्चन का सीक्वेंस बताओ मुझे पहले। करो करो फर्स्ट। CAFBGED, ओके। देखते हैं, करिए सब लोग, करिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन। 70 की स्ट्रेंथ में से 10 ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं।
चलिए देखते हैं क्या किया आप लोगों ने। चलो 0 से शुरू करना है, मतलब 0 टाइम पर कौन कौन से प्रोसेस है सिस्टम में, ए और सी। अराइवल टाइम दोनों का सेम है। अब ए और सी में से बर्स्ट टाइम में देखते हैं किसका कम है। बर्स्ट टाइम भी दोनों का सेम है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, विच विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। देखो अराइवल टाइम भी सेम है, बर्स्ट टाइम भी सेम है। अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए और आपको बोला है कि जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट होगा मुझे तो उसे एग्जीक्यूट करना था, लेकिन बर्स्ट टाइम तो दोनों का इक्वल है, तो क्या करूंगी मैं, वी कैन टेक रैंडमली। तो सिस्टम क्या करता है, रैंडमली किसी को भी पिक कर सकता है। बट हमने एक स्ट्रेटेजी, हमने एक पॉइंट बना रखा है कि हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ताकि हम हर चीज में उसे अप्लाई करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सी को एग्जीक्यूट किया। आप ए को भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, फिर आपने देखो, अब चेक करो, अभी 2 सेकंड तक ए के साथ साथ बी, डी, ई और एफ सारे के सारे आ चुके हैं सिस्टम में 2 सेकंड में। राइट, अब इसमें से शॉर्टेस्ट देखो किसका है, एफ का। तो ए नहीं एग्जीक्यूट होगा, अब एफ एग्जीक्यूट होगा। गेटिंग, एफ को एग्जीक्यूट किया 3, मतलब अभी तक सिर्फ यही बचा हुआ जो सिस्टम में एंटर नहीं किया है। ठीक है, 3 सेकंड तक। अब मेरे पास सी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने एफ एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब कौन सा स्मॉलेस्ट है, ए और बी दोनों। ए और बी में से कौन सा लेंगे, मैं कोई भी ले सकते हो, दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। ए ले लिया मैंने पहले 2 सेकंड के लिए। अब देखो 5 सेकंड तक जीबी आ गए, जीबी आ गए, ए खत्म, ए की प्रोसेसिंग, सी की प्रोसेसिंग खत्म, जी एंटर हो गया, एफ खत्म, एफ को मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर लिया। अब देखो बी, डी, ई और जी, अब इन चारों में से किसका स्मॉलेस्ट है, दो का सेम है, जी और बी का। पहले बी एग्जीक्यूट कर देते हैं एज पर द सीक्वेंस, फिर जी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, फिर ई एग्जीक्यूट कर देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट किसका है, ई और डी में से ई का 12, और फिर डी। डन, करेक्ट है सबका, समझ में आ रहा है ना हम सबको कैसे करना है, हाउ टू डिसाइड। देखो इसमें सिर्फ यही करना है आपको, यू जस्ट हैव टू चेक, यू हैव टू मेक द डिसीजन ओनली बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम। तो आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो इन्हीं पैरामीटर्स, इन्हीं अप्रोचेस के बेस पे एग्जीक्यूट होते हैं। ये करके सब अप्रोच मैं आप लोगों को बताऊंगी। सेकंड बताओ, सेकंड का सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस गैंट चार्ट फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आप एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस बता दो मुझे, सेकंड वाले का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम इसका निकाल लेना तुम लोग, एवरेज। चलो P1, P2, P3, P4। अच्छा, अराइवल टाइम दोनों का सेम है, तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P1 को पहले। ठीक है, फिर 2 सेकंड एग्जीक्यूट कर दिया, तो मतलब फिर ये बताओ कि 0 पे तो कोई भी नहीं है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एग्जीक्यूशन 1 से। ये टाइम आइडियल है, काउंट होगा आपके टाइम में, समझ रहे हो ना। 1 से शुरू होगा P1, फिर 2 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर 2 सेकंड तक आ चुका है, 2 सेकंड के लिए तो यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। तो 3 सेकंड तक ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो इसका काम है पहले P2, फिर P3, फिर P4। P2 के लिए 3 सेकंड, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे P2 के लिए 6, P3 के लिए 10, P4 के लिए 15। डन, क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का। दिस एल्गोरिथम वी हैव डिस्कस्ड इज नॉन प्रिमिटिव, मतलब हमने जिस भी प्रोसेस को दिया है उसे पूरा एग्जीक्यूट किया है, मतलब इसे 2 सेकंड चाहिए तो पूरा 2 सेकंड एग्जीक्यूट किया है।
फिर किसी और प्रोसेस को दिया है। अभी प्रिमिटिव अप्रोच भी करेंगे। ये कौन सी थी? नॉन प्रिमिटिव। डन। आज के सेशन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम करेक्ट है। Okay, so we are closing the session here with this. If you have any doubt, you can please ask. So shall we close this session?